Okay. In order to understand what is business law or corporate law, first we need to understand what is a corporation and what are different types of businesses. And before that, we'll have to talk about what is an organization. So when we say an organization, most of the times we think that it is a group of people, and those group of people, they have certain goals. Yes, that is right, but at the same time, you can also say that they have a deliberate structure of those people. For example, group of people is the first essential. Having a goal is the second essential of the organization. And third essential is the deliberate structure of people. Now, अगर कोई खुदा ना खास्ता रोड पे एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट को देखते हुए कुछ लोग जमा हो जाते हैं और वो लोगों का ये मकसद है कि जितने भी विक्टिम्स हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, they have some goal which they want to achieve, some objectives that they want to achieve, but we cannot call them an organization. Well, those group of people having certain goals or certain objectives, they cannot be called as an organization. But the same activity, if it is being done by the double one, double two people, ये जो emergency services है हमारी, the same thing, if it is being done by them, they are known as organization. Why they are known as organization? Because they have a deliberate structure of people to achieve something, और वो जो goal है, that is to help people in emergencies, that is their goal, and those people are gathered intentionally because of some deliberate structure, तो वो हमारे पास organization हो जाती है. अगर यही activity is, if it is being performed by double one double two, they will be known as organization. If it is just a group of people want to achieve some goal, it is not an organization. The examples of organizations are many. For example, any hospital, any university, any FMCG company, Procter and Gamble, Unilever, Racket and Benkiser, all of them are examples of organizations. So organization की तो definition जो है वो ये बन जाती है. Now, second thing that we need to understand is business. Business का literal meaning क्या है, and business is इसका जो literal meaning है, that is related to transactions. It is a transaction, or you can say it is an exchange. Business means transaction, commerce. Any आजकल जो इसको समझा जाता है, that is transaction of things for profit. So any transaction done for profit can be known as a business. So इसको थोड़ा सा ज़हन में रखना है, because आगे जब हम लॉस पढ़ रहे होंगे तो ये चीज़ें आएंगी. Now there are three types of organizations, but these are the types based on the ownership. The ownership की बेस पे तीन टाइप्स हम डिस्कस करते हैं. इसमें एक एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से तीनों टाइप्स हमें डिस्कस करनी पड़ रही है.
द फर्स्ट टाइप इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, आपको ऑलरेडी आइडिया काफी हद तक होगा. द सेकेंड टाइप इज द पार्टनरशिप एंड द थर्ड टाइप इज द कॉरपोरेशन. पहले तो हम कॉरपोरेशन इसलिए भी पढ़ रहे हैं कि कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ रहे हैं तो साथ आइडिया हो जाएगा. सोल मीन्स वन, दैट मीन्स वन ओनर, वन ओनर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी. प्लीज रिमेंबर, ये हम सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप की बेस पे पढ़ रहे हैं. दूसरी जो अदर टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशंस के, इंटरनेशनल है, नेशनल है, ऑपरेशंस कहाँ कहाँ हैं, उन टाइप्स को भी हम डिस्कस नहीं कर, सिर्फ ओनरशिप की टाइप्स. सो सोल प्रोप्राइटरशिप इज वन पर्सन, बट इस वन पर्सन के लिए जो लाइबिलिटी है दैट इज अनलिमिटेड. अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मेरा बिजनेस 1000 रुपीज का है, मेरा टोटल बिजनेस का जो अमाउंट है दैट इज 1000 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल एसेट्स एंड एवरीथिंग, और सपोज मेरे पास 5000 की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, नॉट बिजनेस प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरी कार है, गाड़ी है, जो भी घर है, सॉरी. अगर मेरा बिजनेस में 1000 रुपीज से ज्यादा नुकसान हो जाता है, से 2000 रुपीज का नुकसान हो जाता है, नुकसान मीन्स किसी और का क्लेम मेरे पे बनता है, किसी बंदे को मेरे बिजनेस की वजह से 2000 रुपए का प्रॉब्लम आता है, तो 1000 रुपीज का मेरा बिजनेस जाएगा इस बंदे के पास, लेकिन मेरी जो लाइबिलिटी है इस बंदे की तरफ वो अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है टू दिस 1000 रुपीज. और मेरे इस 5000 रुपीज जो कि मेरा पर्सनल पैसा है, इसमें से भी 1000 रुपीज इसके पास चला जाएगा, ताकि उसके जो पूरी की पूरी चीजें 2000 रुपीज इसका पूरा मुझे करना पड़ेगा. दिस इज नोन एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि अगर मैं किसी चीज का लाइबल होता हूं एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर, तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी बिजनेस का नुकसान भरा जा सकता है अगर बिजनेस की वजह से नुकसान होता है. दूसरी तरफ पार्टनरशिप आ जाता है. पार्टनरशिप में भी, पार्टनरशिप क्या है, टू और मोर देन टू पीपल अप टू सर्टेन लिमिट, जो भी कंट्री के लॉ ने बताई होती है, दैट वी विल टॉक अबाउट इन सम अदर चैप्टर. दो या दो से ज्यादा लोग मिलके थोड़े थोड़े पैसे या जितने भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मिल के बिजनेस कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है अगर 5000 का बिजनेस है तो 1000 किसी एक ने कंट्रीब्यूट किया हो, 2000 किसी एक ने कंट्रीब्यूट किया हो, और 2000 किसी एक ने कंट्रीब्यूट किया हो. सो 3 पीपल रनिंग अ बिजनेस ऑफ 5000 रुपीज, ये पॉसिबल है. अब इसमें भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये 1000 इन्वेस्ट किया हुआ है और नुकसान हो जाता है, तो अपनी प्रोपोर्शन के हिसाब से हो सकता है मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी में से 500 रुपीज या जितना भी मेरे हिस्से में आ रहा है वो मुझे पे करना पड़े, या नहीं तो मेरा घर गाड़ी बिक सकती है इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट फॉर माई बिजनेस. बट पार्टनरशिप में थोड़ा सा आपके पास लीवरेज होता है, इसमें लिमिटेड पार्टनरशिप भी होती है और अदरवाइज पार्टनरशिप भी हो जाती है. ये डिपेंड करता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जो अग्रीमेंट बनाया है, उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं. तो ये इसलिए मैंने स्टार लगा दिया कि इट इज़ कंडीशनल. एक दफ़ा आपको देखना पड़ता है आपकी रजिस्ट्रेशन की टाइप क्या है, या आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें लिखवाई हुई हैं. तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही होती है, बट एट सम पॉइंट्स इट मे और मे नॉट बी अनलिमिटेड. तो ये आपको इस तरीके से सेकेंड टाइप जो है वो ये है. नाउ द थर्ड टाइप इन विच वी आर मोर इंटरेस्टेड इज द कॉरपोरेशन. कॉरपोरेशन, थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कॉरपोरेशन को समझने के लिए
इस कॉन्सेप्ट को हमारा समझना जरूरी है. दिस इज नोन एज माइक्रो फंडिंग. माइक्रो फंडिंग का मतलब यह है, देखो अगर मुझे आप कहते हो कि एक बिजनेस है जो 10 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है, 1 करोड़ रुपीस, मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो 1 करोड़ रुपया या 10 मिलियन जो इन्वेस्ट कर रहा हूं वो बहुत ज्यादा पैसा है, और मैं एक ही उसका स्टेक होल्डर हूं. ऑल्दो फायदा भी मुझे ज्यादा होगा अगर वो बिजनेस चल जाता है, लेकिन इतना ज्यादा रिस्क मैं लेना नहीं चाहता, और मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं, और मैं इतना ज्यादा पैसा एक चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता. अब दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि जो कॉर्पोरेशंस हैं इनमें पैसा बहुत ज्यादा चाहिए होता है, एंड no one person or 2, 3 or 4 people like in partnership, they are not willing to invest a lot of money into one business. अच्छा, अब मुझे बात बताओ कि अगर हम 1 करोड़ रुपया 1, 2, 3, 4 बंदों से जमा करते हैं तो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर ईच इंडिविजुअल. बट लेट्स से वी हैव 1,000 पीपल. अब हर 1,000 बंदा जो है उसके हिस्से में बहुत कम पैसा आएगा. अगर हम 1,000 की बात करते हैं तो एवरीबडी विल हैव टू स्पेंड 10,000 रुपीज, और वो बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन चल सकती है. फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने कहा हुआ है कि अगर 5 पार्टनर होते हैं तो ईच इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी. अगर 1,000 पार्टनर्स हो सकते हैं तो एवरीबडी विल बी स्पेंडिंग 10,000 रुपीज, और अगर 10,000 पार्टनर्स हो जाते हैं तो एवरीबडी विल बी स्पेंडिंग 1,000 रुपीज. अब क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ वन पर्सन स्पेंडिंग 1 करोड़, one person is spending 1,000 rupees, which is a negligible amount of money. All of us can contribute this 1,000 rupees easily, and नुकसान भी हो जाता है तो कोई इतना खास मसला नहीं है, खैर है, थोड़ा सा रिस्क है. सो हम माइक्रो फंडिंग का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, which means instead of one person contributing everything, we take many people contributing small portion of the financial capital. इस तरीके से हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, बट इसका फायदा, सॉरी, नुकसान इसका ये है कि आपका 1,000 इन्वेस्टेड है, थोड़ा सा आपने इन्वेस्ट किया, थोड़ा सा ये आपको शायद प्रॉफिट आएगा, तो यू नॉट getting a lot of money because you have not spent a lot of money. But this is an easy way of collecting a lot of money. So corporations usually ये कर रही होती. अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि जिस बंदे के पास भी, जिस बंदे ने भी ये 1,000 रुपये मुझे दिया है, उसका मेरे कॉर्पोरेशन में, बड़े बिजनेस में शेयर हो गया है, मलकियत में, ओनरशिप में उसका शेयर हो गया. इंस्टेड ऑफ हैविंग वन ओनर और 2 or 3 owners, many owners are there. Each one of these owners have some share in ownership, which is why they are known as shareholders, because they have a share in the business. So shareholder इस वजह से इनको कह देते हैं. लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कॉर्पोरेशन की कि इसमें अगर आपका नुकसान होता है, कॉर्पोरेशन को चाहे बिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन जितने का भी नुकसान हो जाए, आपको सिर्फ 1,000 रुपीज का नुकसान होगा एक ओनर को. जिसने 2 शेयर्स खरीदे हुए हैं वो ऑब्वियसली 2,000 हो जाएगा, जिसने 10 शेयर्स खरीदे हुए 10,000 हो जाएगा. बट जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है सिर्फ वही नुकसान होगा. आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से ये बिजनेस अलाउड नहीं है कि आपको लायबल ठहराएगा. सो दैट इज व्हाई वी कॉल के कॉर्पोरेशंस की लायबिलिटी इज
लिमिटेड, ओनर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड। नाउ कॉर्पोरेशंस के साथ एक और चीज डिफरेंट अटैच्ड है जो इनके साथ फर्क है। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कोई इशू आता है, कोई नुकसान होता है बिकॉज ऑफ द बिजनेस, people or the other person is going to sue the owner of the company, sole proprietorship mein. For example, if the name of the owner is say John और ये इसका मालिक है इस कंपनी का, तो जो भी केस होगा वो जॉन वर्सेस द अदर पर्सन होगा। जॉन वर्सेस सपोज माइकल कर लेते हैं इसको। माइकल के साथ अगर कोई बिजनेस का नुकसान हुआ है जो जॉन ओन करता है, तो केस चलेगा जॉन वर्सेस माइकल, और माइकल जॉन पे केस करेगा, ओनर पे केस करेगा। अगर पार्टनरशिप की सूरत में कोई प्रॉब्लम आता है तो माइकल जो है वो हो सकता है जॉन, लैरी, हैरी इनके साथ कर रहा हो, जो भी पार्टनर्स हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, दे हैव द लायबिलिटी। बट कॉर्पोरेशन जो है, कॉर्पोरेशन के पास एक वर्ड, एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज नोन एज सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी विच मींस अगर कॉर्पोरेशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आता है तो इंस्टेड कि जॉन 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 इसका एक शेयर होल्डर है सपोज, जिसके पास कुछ शेयर्स हैं 1 2 5 20 30 जितना मर्जी हो, अब जॉन के खिलाफ केस नहीं होगा, बल्कि गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया हुआ है कि आपकी जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन के पास सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। अब अगर कोई केस होता है तो वो केस होगा नेस्ले वर्सेस, अगर माइकल है तो माइकल के साथ, तो नेस्ले वर्सेस माइकल केस होगा। यहां कोई ओनर का नाम नहीं आया, यहाँ नेस्ले का नाम आ गया, शेल का नाम आ जाएगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, यूनिलेवर का नाम आ जाएगा, जो कॉर्पोरेशन है उसका नाम आ जाएगा। तो कॉर्पोरेशन को एज अ पर्सन ट्रीट किया जा रहा है, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। लाइक ऑल ऑफ अस, वी हैव अ separate legal identity. What is the identity? Our name, father's name, ID card number, our address, maybe our fingerprints. These creates our legal identity. कि हम एक separate legal identity हैं। But corporations के लिए corporation के नाम को separate legal identity दी जाती है। Obviously, it's not a human being, but it is an artificial personality. इसको भी as a person treat किया जाता है। That means अगर कोई सजा या कोई ऐसी बात होगी माइकल के हक में, तो कॉर्पोरेशन के ओनर को कोई नुकसान नहीं होगा, कॉर्पोरेशन को सील कर दिया जाएगा। जो पनिशमेंट्स शायद पर्संस को हो सकती हैं, वो कॉर्पोरेशन को पनिशमेंट्स हो रही होंगी। So this concept is known as separate legal identity or artificial personality. Last thing, why do we have to go for corporation is there is like the micro funding concept, there is also